Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Navada. Since we have discussed the chapter synthetic fiber, and I have provided you notes about the if in last video we have discussed about the plastic and its environmental effect. I have told you that plastics are non biodegradable. It causes air pollution, water pollution, soil pollution. We cannot get rid of plastic से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं. It can even cause clogging of the drain. It will cause choking of the animals if it is eaten by the animals, especially cow. So I have told you these are the some bad effects of plastic on environment. So according to that, means after that I have also, according to the last video, I have also told you that there are some golden 5 R's, means to being a, means for us it is said that being a responsible citizen, we should follow the principles of 5 R's. What are 5 R's? I have told you: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. So 5 R's I have told you because as we know that plastic cause lots of environmental effect, means environmental damage, hazardous are there. So being a responsible citizen, we should minimize the plastic pollution. मीन्स प्लास्टिक को कम से कम हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़े. इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो 5 R's को फॉलो करना चाहिए. पहला था रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. वैसा हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक को यूज करें. जहां तक हो सके वहां तक प्लास्टिक यूज नहीं करें. एनर्जी सेव करें आपको. जैसे अगर मान लीजिए आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो घर से अपना झोला लेके जाइएगा सब्जी खरीदने के लिए. प्लास्टिक यूज नहीं कीजिएगा. सो वी विल मिनिमाइज द यूज ऑफ द प्लास्टिक, दैट इज रिड्यूस. नेक्स्ट इज रीयूज. अब मान लीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए और ये कोल्ड ड्रिंक या वाटर, मिनरल वाटर खरीद के लाए, तो ये जो बॉटल जो आप है उसको यूज कीजिएगा किसी और पर्पस के लिए, किसी और काम के लिए. तो हम लोग कहेंगे उसको रीयूज करना. और कब तक रीयूज करेंगे? जब तक वो यूजेबल है. जब वो यूजेबल नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकल. What is recycle? Means these plastic which is of no use, which is already being used, reused, and if you want to get rid of that, it should be recycled. Recycled मतलब क्या कहना है? These plastic, as we know, these plastics are moldable. They are thermoplastic, so they can be melted, and these melted plastic is used to make new substance. So this is called recycling. For recycling you have to follow recover. What is recover? आपके घर में जो वेस्ट जनरेट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट भी है और इनऑर्गेनिक, मींस प्लास्टिक वेस्ट भी है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी है. तो आप जब उसको घर से बाहर कचरा फेंक रहे होंगे तो 2 डस्टबिन होगा, एक ब्लू डस्टबिन, एक ग्रीन डस्टबिन. तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसको डिजायर्ड डस्टबिन में डालेंगे और जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको अलग डस्टबिन में डालेंगे. मतलब मेरे कहने का मतलब है वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड बिफोर डिस्पोजल सो दैट इट इज इजी टू रिकवर. प्लास्टिक को आप बायोडिग्रेडेबल के साथ मिला दिए हैं तो उसको अंदर से कौन छाटेगा? तो ये हम कर सकते हैं. डिस्पोज करते समय दोनों को अलग अलग करके फेंकेंगे, अलग अलग डस्टबिन में फेंकेंगे ताकि आसानी से ये रिकवर हो जाए. तो ये हो गया रिकवर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर. लास्ट इज रिफ्यूज. मीन्स
refuse to take the substance which is made of plastic. Means you have to if all consumer become this much sincere and they do not buy the substance which give you substance in a single use plastic, then the shopkeeper will also become conscious and they will use the biodegradable bags so that less plastic will be used. And if less plastic is used by us, if consumer refuse to take the plastic, then the shopkeeper won't buy it. If shopkeeper won't buy it, then the factory or the industry which produces these plastics, they will reduce the production of plastic. Like this we can minimize the plastic wastage in the environment. ये आपको हम लिख दिए थे, हम सोचे कि समझा देते हैं एक बार। पहले भी आपको लास्ट वीडियो में भी हम ये चीज समझाए ही थे, एक बार फिर से समझा दिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो आई एम देयर एनीवे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन बाय सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी और इंडस्ट्री या फैक्ट्री। जिसको लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बनाते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज सच फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट इज रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयन पढ़ाते समय हम आपको ये बात बताए थे, रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स मींस इट इज मेड अप ऑफ वुड पल्प से बनाया गया था। ये प्योर सिंथेटिक नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ओके, सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प। आंसर होगा बी। फिल इन द ब्लैंक। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर। मींस आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। क्वेश्चन नंबर बी थर्ड का, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये जो छोटा सा बात है पेट्रोकेमिकल्स वाला, इसको आगे जाके जब हम लोग कोल और पेट्रोलियम, आपके बुक में एक चैप्टर है, जब हम लोग उसमें पेट्रोलियम की बात करेंगे तो उस समय हम थोड़ा डिटेल में पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बताएंगे। सो आप इसके लिए वरी नहीं कीजिएगा कि सर पेट्रोकेमिकल नहीं बताए, ये पेट्रोकेमिकल उस चैप्टर के लिए वहां थोड़ा डिटेल में है। यहाँ पे बस इतना ही समझ लीजिए, रॉ पेट्रोलियम दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड बिटवीन द बेडरॉक्स व्हिच इज ड्रिल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑयल रिग्स। ट्यूब के मदद से उस तेल को जो बाहर निकालते हैं तो वो काला रंग का जो रॉ पेट्रोलियम होता है, दैट पेट्रोलियम इज फर्स्ट वेंट फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब बात करेंगे हम लोग। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करेंगे रॉ पेट्रोलियम का, तो उससे हमको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, पैराफिन मिलेगा, एलपीजी गैस मिलेगा। ये सब मिलने के बाद जो नीचे में थोड़ा सा जो सब्सटेंस बच जाता है, मींस जो क्रूड ऑयल से, जो क्रूड ऑयल मींस रॉ ऑयल को ही क्रूड ऑयल कहते हैं, ये क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जो सब्सटेंस नीचे सबसे नीचे ऑब्टेन्ड होता है, उसके मदद से सिंथेटिक सब्सटेंस का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। मींस पेट्रो वर्ड आया पेट्रोलियम से और उससे ऑब्टेन किया जाने वाला केमिकल को ही बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सो क्या कह रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये छोटा सा वर्ड दिमाग में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स इज आल्सो ए मींस सॉरी प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल्स। चलिए, give example which indicate that nylon is very strong fiber. Nylon is used to make parachute और climbing ropes। climbing ropes जो होते हैं, mountain climbing ropes, वहां पे जिंदगी का सवाल होता है। आपको इतना मजबूत सब्सटेंस यूज करना है जिसपे आप अपनी जिंदगी को भरोसा कर सके। सो पैराशूट पे एक लाइफ थ्रेटनिंग मींस लाइफ रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर नायलॉन मजबूत नहीं होता तो हम उसको कभी भी पैराशूट बनाने में यूज नहीं करते। अगर नायलॉन इजीली
फट जाता तो पहले हमारा जो पैराशूट है कहीं बीच रास्ते में फट गया तो आदमी का जान चला जाएगा। क्लाइंबिंग रॉप्स, ये जो रोप्स होते हैं इसका यूज अगर ये कमजोर हुआ तो कोई भी इंसान अपना जान गंवा सकता है। सीट बेल्ट में इसका यूज होता है। सो देयर आर सम यूजेस। The nylon is used to make parachute and mountain climbing rope. These are the example. It is used to make seat belt in the vehicle. It is also used to make strings. Strings होता है ना, जो गिटार बजाते हैं तो गिटार बजाने में जो स्ट्रिंग होता है वो नायलॉन का बना होता है। बैडमिंटन खेलते हैं उसमें जो धागा होता है वो नायलॉन का बना होता है। So these are the uses of nylon, which indicate that nylon has high tensile strength and they are strong enough to withstand large force. ज़्यादा फोर्स को ये हैंडल कर सकता है। Okay, question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. प्लास्टिक कंटेनर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? यूजेस ऑफ, जब आपको हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक बताए थे तो सबसे पहले बताए थे प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, मींस इट डू नॉट रिएक्ट इजीली, आसानी से ये रिएक्ट नहीं करता है। इट डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड मॉइस्चर, इससे आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू नॉन रिएक्टिव इट डू नॉट रिएक्ट विद द आइटम्स स्टोर्ड इन इट। तो क्या कह रहे हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव एंड सो डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन इट। इट इज लाइट वेट, ये हल्का होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई और मटेरियल मेटल का यूज करेंगे तो वो भारी हो जाएगा। इट इज इजी टू हैंडल, आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। चलिए, इजी टू हैंडल भी है और सेफ भी है इसको यूज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एकदम सिंपल सा। मोनोमर्स हैव लीनियर लिंकेज, इसमें जो मोनोमर होता है उसके बीच में जो लिंकेज होता है वो लीनियर होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोनोमर इज क्रॉस लिंक्ड, इसमें क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है। इट कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, इसको बार बार गर्म करके इसको सॉफ्ट किया जा सकता है। सो कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, तो बार बार इसको नया शेप दिया जा सकता है। दिस प्लास्टिक कांट बी सॉफ्टेंड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। वंस अ शेप हैज बीन गिवन इट विल रिटेन इट्स शेप, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। It do not lose its plasticity, कहना कि इसका जो प्लास्टिसिटी है, ability to bend, ability to change into new substance is called plasticity. So ये चूंकि बार बार किया जा सकता है इसका मतलब ये अपना प्लास्टिसिटी लूज नहीं करता है। It loses its plasticity, एक बार कोई शेप दे दिया गया तो नया शेप इसको नहीं दिया जा सकता है। Example, polythene, PVC, etc is the example of thermoplastic. Bakelite, melamine, these are the example of thermosetting plastic. Okay, so I will write the remaining question, then I will explain. एक बार देख लीजिए, पॉज करके हम हट गए सामने से, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। Okay, question number 7. Explain why the followings are made up of thermosetting plastic. Saucepan handles. Saucepan handles are made up of thermosetting plastic because it do not get softened on heating. गर्म होने पर ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है। अगर हैंडल सॉफ्ट हो जाएगा तो किसी चीज जो सॉसपेन है उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इट कैन नॉट बेंड इजीली, आसानी से ये मुड़ नहीं सकता है, दूसरा पॉइंट। एंड वन मोर थिंग, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए ये हीट को हमारे हाथ तक नहीं पहुंचने देता है। सो सॉफ्टवेयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ thermosetting plastic because they do not soften on heating and they cannot bend easily, आसानी से मुड़ नहीं सकता है। They are poor conductors of heat. Example, bakelite. bakelite जो यूज किया जाता है ये इसी सब प्रॉपर्टी के कारण bakelite को यूज करते हैं, ठीक है। Next is electric plug, switches and board plug boards. These are used as आप इलेक्ट्रिक का काम है तो ऑब्वियसली समझ गए होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग्स एंड बोर्ड्स आर मेड अप ऑफ thermosetting plastic because they are bad conductor of electricity. कॉमन सी बात।
इस नॉर्मल सी बात। कैटेगराइज द मटेरियल्स इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स which into can be recycled and cannot be recycled, जिसको रिसाइकिल किया जा सके और जिसको नहीं किया जा सके। कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग, प्लास्टिक बॉल्स, कटोरा, कवरिंग, plastic coverings on the electrical wires and plastic chair, these can be recycled, cannot be recycled। telephone instruments, cooker handle, ball point pen and electric switches, these cannot be recycled। okay, Rana wants to buy shirts for summer, ध्यान से, गर्मी के लिए। Should he buy cotton shirts or shirts made up of synthetic material? Okay, advise Rana giving your reason। हम लोग क्या एडवाइस कर सकते हैं? So Rana should buy a cotton cloth। Why? कारण, because cotton clothes have more water absorbing capacity compared to synthetic fibers। And as we know during summer we sweat a lot, पसीना बहुत चलता है। So if the clothes do not absorb the water, it will not be comfortable for us। So cotton clothes absorb sweat and it is comfortable to wear। So Rana should buy cotton shirts because cotton can absorb more sweat compared to any synthetic fiber, कोई भी synthetic fiber के तुलना में। As we know we sweat more in summer, so cotton clothes are comfortable to wear। ठीक है, चलिए, give example to show that plastics are not non-corrosive in nature। non-corrosive का literal meaning, मतलब literally non-corrosive means resistant to get destroyed by chemicals। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल्स के मदद से डिस्ट्रॉय नहीं हो सके उसको नॉन कोरोसिव कहते हैं। मींस इस तरह इसको समझिए, कोई भी चीज किसी केमिकल से डिस्ट्रॉय कब होता है? जब वो चीज इस केमिकल से रिएक्ट करेगा। सो इफ समथिंग इज नॉन रिएक्टिव इट मींस दे आर नॉन कोरोसिव। Iron is reactive in moisture and air, so it get rusted easily, so it get damaged because they are reactive। If something is non-reactive, then they are non-corrosive। Example, first, unlike iron nail के जैसा नहीं, unlike iron nail, plastics are non-corrosive, means non-reactive with moisture and air। मॉइस्चर मीन्स पानी और हवा के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, दीज प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो है उसको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, so these chemicals won't react with the plastic and it will not cause damage to the plastic, so those chemicals can be kept into the plastic for long duration। food items may, all type of food item can be stored in the plastic because plastic is non corrosive। these examples says that or explains that the plastics are non corrosive in nature। non corrosive means it is resistant to the chemical reaction, means resistance to the destroyed by the chemicals। रिएक्शन करेगा तभी तो डिस्ट्रॉय होगा, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो unlike iron nails, plastic do not react with water and air। आयरन नेल में तो जंग लग जाता है, इसमें नहीं लगेगा। आयरन में लगने का कारण क्या है कि वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करता है। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, हेंस क्लीनिंग केमिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। डिटर्जेंट वगैरह जो होता है क्लीन करने के लिए जो लिक्विड, जैसे मान लीजिए कि आपका कोलिन हो गया, वो भी एक प्रकार का केमिकल है। इट इज स्टोर्ड इन द प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर ऑल टाइप ऑफ फूड। हर तरह का फूड हम लोग प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होना चाहिए। हम जो मना किए थे कि प्लास्टिक बैग में यूज करने के लिए, इसका कारण दूसरा था। प्लास्टिक, उस प्लास्टिक बैग को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल्स, उसको कलर देने के लिए उसमें केमिकल्स, डाइज ऐड किया जाता है। ये जो डाई ऐड किया जाता है उसको कलर देने के लिए, दैट विल कॉज कैंसर। अच्छा, एक और बात हम आपको बोले थे, दीज प्लास्टिक्स आर
एक सेकंड, क्या बोलने वाले थे? प्लास्टिक नॉन करोसिव इन नेचर, अच्छा हाँ वही बात बोलने वाले थे। स्टोर ऑल टाइप ऑफ फूड, और जो प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग है उसमें केमिकल्स यूज होता है, डाइज यूज होता है, इस कारण से हमको उसको नहीं यूज करना चाहिए। प्लास्टिक का भी ग्रेड होता है, फूड ग्रेड क्वालिटी, यही बोलना चाह रहे थे हम लोग। हम बोलना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं उसका भी अलग अलग क्वालिटी होता है। आप देखिएगा प्लास्टिक के नीचे में एक सर्किल टाइप का इस प्रकार से कुछ डायग्राम बने होते हैं, उसमें नंबर लिखा हुआ होता है। वो नंबर रैंडमली नहीं लिखा हुआ होता है, वो इंडिकेट करता है कि कोई भी प्लास्टिक किस ग्रेड का है, उसमें क्या क्या रखा जा सकता है। तो प्लास्टिक भी डिपेंड करता है वो किस ग्रेड का है। ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, should the handle and the bristles of toothbrush be made of same material? Explain your answer। कहता है ब्रश जो है जिससे आप दांत ब्रश करते हैं, तो एक हैंडल हो गया जिसको आप पकड़ते हैं, और उसके ऊपर में जो ब्रिसल्स होता है जिससे आप दांत रगड़ते हैं, तो क्या दोनों सेम मटेरियल का होना चाहिए? नहीं, दोनों सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दोनों हार्ड मटेरियल, मतलब ब्रिसल्स भी उसी मटेरियल का बना हो जिस मटेरियल का हैंडल बना हुआ होगा, तो इट विल कॉज डैमेज टू आवर गम्स। हमारा जो गम है वो सॉफ्ट होता है, इट कैन इजीली गेट डैमेज्ड अगर ब्रिसल्स भी उसी मटेरियल का बना हो जिस मटेरियल का हैंडल बना हुआ होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं ब्रिसल्स जिस मटेरियल का बना हुआ है उसी मटेरियल का अगर हैंडल भी बना हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो लुचपुच होगा, मींस इट विल बी नॉट हैविंग ए फर्म स्ट्रक्चर, सो इट विल नॉट बी इजी टू ब्रश। सो दोनों का जो मटेरियल है दोनों सेम नहीं होना चाहिए। नो, handles and bristles of toothbrush should not be made up of same material because gums are soft and the bristles should be made up of soft material so that it do not harm the gums। पहला पॉइंट। दूसरा, handles should be made up of hard material so that it can give firm grip, बढ़िया ग्रिप दे। बात समझ में आ गई? चलिए 12, avoid plastic as far as possible, comment on this advice। अब प्लास्टिक क्यों नहीं यूज करना चाहिए? अब इसका बहुत सारा कारण है आपका। ये it is non biodegradable, it will cause air pollution, water pollution, means if it is burned it is cause air pollution, it will cause water pollution, it will cause soil pollution, it will prevent the seeping of the water, it is cancerous, it will cause clogging of the drain, it will cause choking of the animals, it is harmful for the क्या कहते हैं वर्कर के लिए हार्मफुल है, इट इज कैंसरस। बहुत सारा आपको हम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक बताए हैं, वो सारा का सारा लिख सकते हैं आप, और नहीं तो जो हम लिखे हैं उससे भी काम चलाइए। आप इसमें एक दो पॉइंट ऊपर से भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखिए। हम तो एक टेम्पलेट दिए, एक बता दें कैसे लिखना है। लिखना आपको है, आप इसको लिखिए तो भी ठीक है, अपने मन से लिखिए तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। So plastic must be avoided as far as possible because plastics are non-biodegradable, hence cause air, water and soil pollution। हम एक लाइन में सब कुछ शॉर्ट में लिख दिए हैं। When plastic is thrown outside, it can be eaten by animals and can choke their respiratory tract and cause death of these animals। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, plastic can also cause clogging of the drains and the sewer line। वो नदी नाला मिस नाला जो हो गया, ड्रेन्स हो गया, उसको वो चोक कर देगा, उसको जाम कर देगा, मींस क्लॉग कर देगा, क्लॉगिंग चोकिंग नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। अब देख लीजिए क्या है, पॉलीइस्टर। पॉलीइस्टर क्या है? फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली, जिसमें आसानी से रिंकल नहीं पड़ता है, मतलब मुचड़ाता नहीं है आसानी से। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मटेरियल है, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कुकवेयर्स, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जो खाना बनाते हैं ना, नॉन स्टिक पैन जिसको कहते हैं, उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। रेयॉन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प है उससे बनता है। नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। अब बच गया 2 क्वेश्चन, 2 मिनट और।
So question number 14. Manufacturing synthetic fiber is actually helping conserving of forest. Comment. क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर के लिए जो यूज करते हैं वो सिर्फ केमिकल्स होता है, नो नेचुरल सब्सटेंस इज यूज. सो वी कैन से वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट because we are not depending upon the forest material or the product from the forest. We depend upon chemicals, so we can say we are conserving the forest. So manufacturing synthetic fiber is actually helping conserving of forest because for making synthetic fiber we use only chemicals and no natural materials are used, so we can say we conserve forest. लास्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल शॉर्टकट में बता दिए हैं, ऐसे ही लिख लीजिएगा. मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज फॉलोइंग. इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें एक बल्ब होगा, एक वायर होगा, बैटरी होगा और दो पॉइंट होंगे. वायर का दो फ्री एंड जो है वो पॉइंट होगा ए एंड बी. इतना ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद now place the thermoplastic between A and B. We will see that bulb do not glow, so we can say it is a poor conductor of electricity. With this activity we can say thermoplastic is a poor conductor of electricity. ठीक है. So exercise complete. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए.